नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एनजीपी इलाके में ड्राई पोर्ट में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद एनजीपी इलाके में फैला हुआ है सन्नाटा। दिख रहा है घोषित बंद का नजारा। दुकान बाजार है बंद और सिटी ऑटो भी नहीं चल रहे। कर्मी नियुक्ति को लेकर एनजीपी इलाके में स्थित ड्राई पोर्ट में गुरुवार को हुई हिंसात्मक घटना के बाद आज न्यू जलपाईगुड़ी इलाके में अघोषित बंद का नजारा दिखाई दे रहा है। सभी दुकान बाजार बंद है और यहां तक कि सिटी ऑटो और टोटो भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण न्यू जलपाईगुड़ी आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आईएनटीपीसीसी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कोई बंद का आह्वान नहीं किया है। आपको बता दें कि न्यू जलपाईगुड़ी टी पार्क के ड्राई पोर्ट में कर्मी नियुक्ति गुटों के बीच विवाद को लेकर इलाके में गुरुवार को व्यापक तनाव देखा गया। आईएनटीटीयूसी कर्मियों ने स्थानीय कर्मियों की नियुक्ति की मांग को लेकर ड्राई पोर्ट के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। दो गुटों के बीच गुरुवार को जमकर संघर्ष की घटना सामने आई। ड्राई पोर्ट के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस ने नेताओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। एनजीपी तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन के नेता प्रसन्नजीत रॉय ने आरोप लगाया था कि कई राउंड गोलियां भी चलाई गई थी। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं दिया गया है। আমাদের গাড়ি চালাই ওই যে গাড়ি আমার আছে এখানে শুনতে যে কালকে ক্যাসাল করেছিল এখানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মোড়ে বিজেপি পার্টি তৃণমূল পার্টি নিয়ে মানে একটু মানে এমনি বিবাদ সৃষ্টি হয়। ক্যাসাল সৃষ্টির কারণে যারা এখানকার লোকাল শ্রমিক আর কি ড্রাইভার রিক্সাওয়ালা আছে অটোওয়ালা আছে পার্টি থেকে ডাকছে আর কি এটা আমাদের আজকে বন্ধ রাখার জন্য এটা সংশোধন হবে তারপরে খুলব। আজকে কলকাতা থেকে এসেছি, গাড়ি পাচ্ছি না কিছু, এখন খোঁজার চেষ্টা করছি। যেখান থেকে পাই শিলিগুড়ি যাবো, শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি পাবো। ড্রাইভাররা বলতে কিছু স্ট্রাইক রয়েছে, ভাড়া ডবল নেবে তার জন্য যদিও গাড়ি যায়। আমাদের বাড়ি বাগডোরাতে, আমরা কলকাতায় গেছিলাম কোনো কাজে, এখন এসছি গাড়ি পাচ্ছি। বনটা কিসের জন্য কিন্তু আমিও তো বুঝতে পারি নাই, ঠিক আছে, আমিও জানতে পারি না যে কিসের জন্য বন্ধ আছে। আমি এখন আসি শুনলাম বন্ধ আছে, বন্ধ রেখে গেছে, এখন গাড়ি চলবে না তো কি করবো। এটা তো ইউনিয়ন থাকে করছে মনে হয়, কালকের ঘটনার মধ্যে আমি কিছু জানি না অবশ্য, কিন্তু এখন সকালবেলা আসছিলাম বন্ধ আছে। আমরা সিকিম বেড়াতে এসেছি, আমরা এখন যাব, শেয়ারের গাড়ি খুঁজছি, পাচ্ছি না, সবই স্ট্রাইক আছে। দেখছি কোথায় পাওয়া যায়, বিপত্তির মধ্যে বললাম। দেখি এখন এদিক ওদিক খুঁজছি, লোককে জিজ্ঞেস করছি, দেখা যাক। আমিও বলতে পারবো না, আমি আসলাম তো এখনই শুনলাম, মানে আমিও ঠিক মতন জানি না, শুনলাম যে বন্ধ। কেন কারণটা বলতে পারছি না, আমি ওটা বলতে পারছি না, আমি এখনই জাস্ট আসলাম, এদের মুখেই শুনছি যে বন্ধ বন্ধ বন্ধ। ওরা ভালো বলতে পারবে, ওদেরকে ঠিক বলতে পারলাম না, আমি তো শুরুতেই বললাম, প্রথম তো বললাম তোমাকে একবার, আমি ঠিক বলতে পারলাম না বন্ধটা কিসের। আমি সকালবেলা দোকান খুলতে আসছি, দেখি যে বন্ধ, যা বলতে পারলাম না। না না, বন্ধ চলছে না, কে বলছে বন্ধ চলছে? বন্ধ চলছে না তো, কাজে আসিনি, বন্ধ হচ্ছে না তো। এটা বন্ধ করার জন্য হয়নি তো, এটা যারা যারা দোকান তারা খোলেনি, তারা আসে। বন্ধ বলে আমাদের তো কোনো কিছু নেই, বন্ধের তো আমরা আমাদের খিলাফ, বন্ধ আমরা করবো না। কাজে আসছে না, না আসলে আমরা কী করা আছে? আমরা এসেছি, গাড়ি যাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার যারা নামছে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। না এখন ড্রাইভারদের কেউ আমরা মানা করিনি, আমরা বলিও নি যে বন্ধ করো, কেউ এরকম কোনো আমাদের পার্টি বেস থেকে কোনো ইনফরমেশন নেই। এবার কাজে আসছে না বা গাড়ি চালাচ্ছে না, সেটা আলাদা। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया रहटकर ने जमकर बोला, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला। कहा, राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार और शोषण लगातार जारी। कोलकाता में एक 9 वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अखिल भारतीय अध्यक्ष विजया रहटकर ने जमकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और उनकी हत्याएं की जा रही है। सिलीगुड़ी में उत्तरबंग मारवाड़ी भवन में पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और लाभकारी योजनाएं शुरू की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है।
इसके पीछे एकमात्र कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो अपने ईगो के कारण इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। विशेषकर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह काफी दुख का विषय है। अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया है। उस कल्याणकारी योजना से अनेक लोग लाभान्वित भी हुए हैं और विकास के साथ हम चल रहे हैं, तो लोगों को ये विश्वास आ गया है कि विकास की राह पे चलना सबसे अच्छा होता है और नरेंद्र मोदी जी उनका विकास कर सकते हैं। एक ये भावना है और दूसरी तरफ ये भी भावना है कि ममता दीदी ने उनका हक छीन लिया है, उन्होंने उनके लिए काम नहीं किया है। देखिए, ये तो सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की हमारी सरकार ये सब बातें कर चुकी है। मैंने अभी कहा कि महिलाओं को सम्मान देने वाली योजना जो उज्ज्वला योजना है, देश की 8 करोड़ बहनें जो इससे वंचित थी, आज भी उनको बहुत तकलीफ में काम करना पड़ रहा था, उन महिलाओं को आज हमने मुफ्त गैस का सिलेंडर दिया है। 8 करोड़ परिवार खुशहाली की अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए, परिवार के लिए पूरे 10 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा शौचालय बन गए हैं। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी बड़ी सम्मान की बात है कि ये शौचालय आज उनको बहुत अच्छी तरीके से सम्मान दे रही है। उसी के साथ साथ 25 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है, जिसमें 15 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा महिलाएं हैं। ऐसी हमारी अनेक बहनें हैं जिनका स्किल का ट्रेनिंग हो चुका है। इसके साथ साथ 2 करोड़ घर बन गए हैं। इस घर में सबसे खासियत ये है कि आवास योजना में उसकी मालिक महिला भी है। पुरुष और महिला दोनों पति पत्नी की संयुक्त मालिकी हमने वहाँ पे दी है। ऐसे अनेक योजना हमने बनाई है। महिलाओं की जब बात आती है तो हमने अभी इस पैंडेमिक में जो महिलाएं जिनके जनधन अकाउंट बनाए गए थे, उस जनधन अकाउंट में 500 रुपया डाला है। उसकी वजह से महिलाओं को इस पैंडेमिक में बड़ी हेल्प भी हो गई है। और इसी पैंडेमिक में हमने यही सभी जो 8 करोड़ बहनें हैं उनको हमने मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है, क्योंकि पैंडेमिक के समय पे उनको हेल्प करना बहुत जरूरी था। ऐसे काम किया रहे हैं तो SC ST और माइनॉरिटी इन सभी के लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी सरकार ने शुरू करी है। ऐसे अनेक निर्णय सरकार ने किए हैं जिसके बलबूते पे कल्याणकारी योजनाओं के साथ हम सत्ता में आएंगे। अच्छी खबर, जलपाईगुड़ी जिला हुआ कोरोना मुक्त। जलपाईगुड़ी शहर पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो गया है, क्योंकि गुरुवार को एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया है। यह जानकारी उत्तर बंगाल कोविड-19 के दायित्व प्राप्त डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने दी है। उन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी में 11 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन जलपाईगुड़ी जिले में एक भी व्यक्ति गुरुवार को पॉजिटिव नहीं पाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोविड-19 का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और जरूरत है कि लोग मास्क पहने ताकि जिला हमेशा कोरोना मुक्त रहे। বৃহস্পতিবার 4 তারিখ আমি বেলা 12টা পর্যন্ত বলি, 12টার পরে এখন বলবো না। বেলা 12টা পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববাংলা কোভিড হসপিটাল ফ্রি, কোনো কেস ছিল না। শিলিগুড়িতে গতকাল সন্ধ্যে পর্যন্ত 11 জন পেশেন্ট ছিল, আর অন্যান্য জেলাতে কিন্তু ওই আছে নেই এরকম ধরনের। সুতরাং অ্যাজ এ হোল উত্তরবঙ্গ এখন কোভিড পরিস্থিতি ডেফিনেটলি অনেক উন্নত। তবুও আমি বারবার বলেছি ফেব্রুয়ারি মাসটা আমাদের একটু দেখতে হবে। সাবধানে থাকুন, মাস্কটা ব্যবহার করুন। ভ্যাকসিনটা এসে গেছে, আমরা যেমন প্রত্যেকে নিচ্ছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো ভ্যাকসিনেশনের পরেও কিন্তু আপনাকে মাস্কটা পরতে হবে। মাস্ক আমি নিজে যেটা দেখলাম এই 1 বছর ধরে মাস্ক পরে ভালো আছি, কিন্তু সুস্থ আছি, ধুলোবালি লাগে না, কারোর কাছ থেকে অ্যালার্জিগুলো দুম করে ঢুকছে না, এটা খুব ভালো। नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों से मिले भाईचुंग भूटिया, सिखाया खेल का गुण। सिलीगुड़ी में फुटबॉल के उभरते खिलाड़ियों को उत्साहित करने गुरुवार को भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान भाईचुंग भूटिया एक कोचिंग सेंटर पहुंचे। भूटिया सिलीगुड़ी के 28 नंबर वार्ड के टीकियापाड़ा नवज्योति संघ के फुटबॉल कोचिंग सेंटर पहुंचकर यहां खिलाड़ियों को उत्साहित किया। उनके साथ सिलीगुड़ी के विधायक व नगर निगम के प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य भी मौजूद थे। भाईचुंग ने विधायक अशोक भट्टाचार्य द्वारा सिलीगुड़ी में खेल के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। इस अवसर पर नवज्योति संघ की ओर से पूर्व फुटबॉल कप्तान को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने इन उभरते खिलाड़ियों को फुटबॉल के कुछ गुण भी सिखाए। इससे पहले वे नगर निगम के 2, 3 एवं 45 नंबर वार्ड के विभिन्न खेल मैदानों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां के खिलाड़ियों से बातचीत भी। सिलीगुड़ी में शुरू हुआ पुष्प मेला। काला टमाटर रहा आकर्षण का केंद्र। सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के तत्वाधान में गुरुवार को पुष्प मेले का शुभारंभ
दीप प्रज्वलन के साथ कंचनजंगा स्टेडियम मेला ग्राउंड में किया गया। इस अवसर पर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष नांटू पाल ने कहा कि फूल मेले के माध्यम से हम पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश लोगों को दे रहे हैं। लोगों से अपील की जाएगी कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। बिल्डिंग प्लान बनाते समय भी ध्यान रखें कि बड़े बड़े पेड़ का नियम लगाने का नियम अनिवार्य रूप से लागू हो। दर्शकों को जागरूक कराने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किया गया है। वहीं सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के सचिव प्रशांत सेन ने कहा कि मेले में 2500 पॉट प्रदर्शित किए गए हैं। वहीं 63 नर्सरियां आई है। बालूरघाट से आया काला टमाटर इस वर्ष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 37তম উত্তরবঙ্গ পুষ্প প্রদর্শনী শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির পক্ষ থেকে আজ 4 তারিখ শুরু হলো। আগামী 8 তারিখ পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মেলা গ্রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে এবং এই প্রদর্শনী উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী এটা। এখান থেকে যেরকম পাহাড়, সিকিম, ভুটান, পর্যটকের বন্ধুদের অনুরোধ করব মঞ্চের সামনে আসার জন্য। কালিম্পং, কার্শিয়াং থেকে প্রচুর ফ্লাওয়ার্স নিচে বিক্রেতারা আসছেন, তেমনি অনেক প্রদর্শনীতে আসছেন, অনেক অর্কিড এসছেন, বিভিন্ন ঘর সাজানো জিনিসপত্র এসছে। ইতিমধ্যেই 65টা স্টল শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছে। আমরা দাবি করছি যে এটা সবচেয়ে বৃহৎ ফ্লাওয়ার শো পশ্চিমবঙ্গে এবং এই ফ্লাওয়ার শোকে কেন্দ্র করে গত বছর 2.5 কোটি টাকার বিক্রি হয়েছিল, এই বছর তার চেয়ে বেশি হবে। এবং আমরা সকলকে চাই প্রতিটি বাড়িতে 2টো করে গাছ লাগান এবং গাছ পরিবেশকে বজায় থাকে, গাছকে ভালোবাসুন, পরিবেশকে সুস্থ রাখুন। এবং আমরা আগামী দিনে দাগাপুরেও একটা পার্ক করছি, রিসার্চ পার্ক, তার একটা আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এদিকে আমরা সেই আলোচনা এটা করে দেওয়া হচ্ছে। দাদা এবার দিকের সাথে চন্দ্রমল্লিকা গাছ, একসঙ্গে অনেক ফুল আছে, অনেকগুলো মাথাম জাতীয় গাছ আছে, ডালিয়া অনেক বড় বড় এসছে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफ भएको थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी
हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक, NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिजली के खंभे पर चढ़ने के लिए बनाया गया लोहे का जूता, क्लाइंबिंग। उत्तर दिनाजपुर जिले के अख्तर अली ने किया कमाल। बिजली के खंभे पर चढ़ने के लिए एक व्यक्ति ने विशेष प्रकार का जूता बनाया है, जिसका नाम उसने क्लाइंबिंग रखा है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक मिस्त्री को दूर दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के दौरान काफी समस्याएं आती है। बिजली के खंभे पर चढ़ने के लिए लोगों को भारी भरकम सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, पर अब इसे लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर दिनाजपुर के दासपड़ा इलाके के रहने वाले अख्तर अली ने लोहे का एक विशेष प्रकार का जूता बनाया है, जिसका नाम उन्होंने क्लाइंबिंग रखा है। इससे पहनने के बाद बड़े आसानी से लोग बिजली के खंभे पर चढ़ सकते हैं। अख्तर अली ने यह कारनामा कर दिखाया। इस विशेष प्रकार के जूते बनाने के बाद वे अपने इलाके में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। लोग इसे देखने व खरीदने के लिए काफी संख्या में उनके पास पहुंच रहे हैं। अख्तर अली ने बताया कि वे खुद इलेक्ट्रिक मिस्त्री है। काम के सिलसिले में उन्हें खुद ग्रामीण इलाकों में आना जाना पड़ता है। बिजली के खंभे पर चढ़ने उतरने के लिए उन्हें अपने साथ सीढ़ी रखना पड़ता है, जो काफी मुश्किल है। लेकिन इस विशेष प्रकार के जूते पहनकर काफी आसानी से बिजली के खंभे पर चढ़ा जा सकता है। अब सीढ़ी लेकर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मामूली वजन के इस लोहे के जूते पहनकर लोग आसानी से बिजली के खंभे में चढ़ सकते हैं। এটা আমি বানাইছি কালকে, নিজে বানাইছি আমি। জিনিসটা পলে উঠতে ভালো লাগে, আমাকে উঠতে ভালো লাগে। তারপরে চমুর থেকে আমি একদিন লাগালাম যে পলে চড়ে কিভাবে চড়বো শর্টকাটে। তারপরে এটা বুদ্ধি লিখলাম আমরা। विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों के लिए वर्कशॉप आयोजित। प्रयोगों में मदद के साथ साथ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चिंतन पैदा करने का लक्ष्य जलपाईगुड़ी लाइट ऑफ साइंस नामक संगठन ने विज्ञान की उच्च शिक्षा को प्रायोगिक तौर पर आगे बढ़ाने की विशेष पहल कर रहा है। संगठन की ओर से शहर के 3 नंबर गुमटी स्थित लाइट ऑफ साइंस के अस्थायी कार्यालय में एक वैज्ञानिक प्रयोगों को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति चिंतन व अवधारण पैदा करने के लिए यह पहल की गई है। संस्था के सदस्य दीर्घा विश्वास ने बताया कि पहले से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में अक्सर अपने हाथों से विज्ञान का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उन विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों के लिए यहां अवसर मुहैया कराया जाता है। यहाँ बच्चे अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही उनमें वैज्ञानिक चिंतन व विचारधारा विकसित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा, संस्था की ओर से लोगों में समाज में फैली कुरीतियों व अफवाहों के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। विद्यालय व कॉलेज के विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने के लिए संस्था की ओर से लगातार पहल की जा रही है। আমরা আজকে এখানে আমরা ক্লাস 10 পর্যন্ত যা যা পড়েছি বই, তা তো কখনো আমরা প্র্যাকটিক্যালি করে দেখিনি, তো ওগুলাই আমরা প্র্যাকটিক্যালি করে এখন দেওয়ার চেষ্টা করছি। সাধারণত আমাদের উদ্যোগটা ছিল যে ক্লাস 5 থেকে 10 পর্যন্ত যারা আছে তাদের পাঠ্য বিষয়টা আমরা এখানে এক্সপ্লেন করে দেখাবো, কিন্তু আজকে যখন আমরা এখানে করছি তো এখানে 5 থেকে 12 এবং 5 এর নিচেও অনেক শিশু বা ছাত্ররা এখানে এসেছে যারা আমাদের এক্সপ্লেন এখন সাহায্য। কি কি দেখাচ্ছ তোমরা? আমরা এখানে যেমন আর্কিমিডিসের কিছু কিছু নীতি আছে, তারপর প্লুবোতার নীতি আছে, মোটর কীভাবে ঘুরে আমরা কীভাবে একটা মোটর বানাতে পারবো, জেনারেটর কীভাবে তৈরি হয়, আর তরলের যে ঘনত্ব বলে চাপ বাড়ছে, এই প্রমাণগুলো আমরা এখানে দেখাচ্ছি। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা কতটা উপকৃত হচ্ছে? ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই উপকৃত হবে, কারণ ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেটা পড়ছে সেটা বিজ্ঞান একদম থিওরিটিক্যাল হয়ে গেছে, প্র্যাকটিক্যালি তারা চিন্তা করতে পারছে না যে আমাদের যদি চারপাশে কোনো ঘটনা ঘটে ওটার পিছনে যে বিজ্ঞানটা লুকিয়ে আছে তারা সেটা বুঝতে পারছে না। তো আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা করার মাধ্যমে তাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে বই যেটা পড়ছি ওটা আদতে কতটা সত্যি, কতটা। अनोखी पहल, शादी के प्रीति भोज में नव दंपत्ति ने आमंत्रित लोगों में बांटे पौधे। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं लोगों को इस बारे में जागरूक कराने के लिए एक नव दंपत्ति ने अनोखा तरीका इजाद किया। इस नव दंपत्ति ने शादी के बाद प्रति भोज में आमंत्रित लोगों को भोजन के बाद उपहार स्वरूप पौधे बांटे। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक के चराई महल इलाके में नव दंपत्ति की इस पहल की चारों ओर सराहना की जा रही है। हाल ही में प्रणय सूत्र में बंधने वाले सुकांत दास व सेविका दास ने शादी के बाद प्रतिभोज के कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया था। भोजन के बाद उन्होंने आमंत्रित लोगों को पौधे बांटे। इलाके के रहने वाले जयशंकर दास ने बताया कि वास्तव में यहाँ काफी उपयोगी व प्रेरणादायक प्रयास है। उन्होंने अन्य लोगों को भी इस तरह के प्रयास में शामिल होने का अनुरोध किया।
वहीं नववधु सेविका दास ने बताया कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मनुष्य जाति के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए बेहद खतरनाक है। इसे रोकने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों को इस बारे में जागरूक कराते हुए उन्हें पौधे भेंट किए। আমার খুবই ভালো লাগছে। আমাদের পৃথিবীতে একটা মানে ভবিষ্যতে একটা সমস্যা দেখা দেবে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন। সেজন্য আমাদের এখনই সতর্ক থাকা দরকার। তাই মানে আমাদের শ্বশুরবাড়ির পরিবারের লোক সেটা বুঝে মানে বিয়ের অনুষ্ঠানে এই উদ্যোগটা নিয়েছে। এই যে আজকে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন, যেখানে মানুষ গাছ কেটে ফরেস্ট ধ্বংস করে দিচ্ছে, সেখানে আমাদের যেটা উদ্যোগ, প্রথম যেটা উদ্যোগ যে একটি গাছ হাজার প্রাণ, এই ছিল একটি গাছ একটি প্রাণ, এখন একটি গাছ হাজার প্রাণ, বাঁচতে হলে গাছ লাগান, এই স্লোগানকে সামনে রেখে আজকে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা আমাদের ভাই সুশান্ত এবং তার পরিবার, তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছে তাকে আমরা কুর্নিশ না জানিয়ে পারছি না। আমরা চাই প্রচুর বাজেটের যে খরচাগুলো হয় বিয়েবাড়িতে, সেখান থেকে একটু খরচা বাঁচিয়ে এই গাছগুলো যদি মানুষকে আরও বেশি করে দেওয়া যায়। আমরা চাইবো প্রত্যেকটা মানুষ বিয়েবাড়ি যখন আয়োজন করবে বা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, এরকম কিছুটা হলেও যদি 10টা করেও যদি গাছ দেয়, তবুও আমাদের বিশ্বের যে উষ্ণায়ন হয়েছে সেখান থেকে আমাদের পরিবেশ রক্ষা পাবে, আমাদের সমাজ রক্ষা পাবে, সর্বোপরি আমাদের সমগ্র পৃথিবী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা পাবে। সেজন্য এই উদ্যোগটাকে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। जलपाईगुड़ी के विकास के लिए राज्य सरकार ने नहीं दिए रुपए, ये बात कही है कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने। जलपाईगुड़ी के कांग्रेस विधायक डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने राज्य की तृणमूल सरकार पर जलपाईगुड़ी के विकास के लिए किसी परियोजना के लिए रुपए आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन में ये बातें कही। विधायक ने कहा गीतांजलि आवास योजना के लिए विधायक के जरिए भी किसी के लिए घर नहीं बनाने दिया गया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को चिट्ठी भेजकर घर बनाने की शुभकामनाएं दी जिनका घर वास्तव में बना ही नहीं है। विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस विधायक ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जा रही है, जबकि स्कूलों में साइकिल रखने के लिए स्टैंड नहीं बनाने दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए पंखे नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है। विधायक डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने कहा कि वे अपने विधायक कोष से जहां तक संभव हो सका जलपाईगुड़ी के विकास के लिए काम। ওনার কথাটা বলেছেন সুখবিলাস বাবু প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস দলের একজন সম্পদ। শুধুমাত্র কংগ্রেস দল বললে ওনার বিষয়টাকে ছোট করে দেখা হয়। উনি পশ্চিমবঙ্গের একজন সম্পদ। আমি উত্তরবঙ্গ বলবো না, আমি উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমরা বাংলার মানুষ। সেই জায়গাটাতে ওনার একটা ব্যক্তিগত মত থাকতেই পারে, আমার আপনারও নিশ্চয়ই আছে, যে আপনার হয়তো একদিন ইচ্ছা করলো না সাংবাদিকতা করার, আমার একদিন স্কুল যেতে ইচ্ছা করলো না, এরকম হয়। এই ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবে দল সিদ্ধান্ত নেবে। আর যেতে চাইলেই যে যেতে যাওয়া যায় এরকমও তো হয় না, যে ছাড়তে চাইলেই ছেড়ে দিলাম, সেটা গান টান করে বলার ক্ষমতা আমার নেই, ওনার আছে আর কি, ঠিক আছে। এইভাবে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। তবে আমি যেটুকু বলতে পারি, আমাদের দলীয় যেটা ব্যাপার, আমাদের দলটা তো কোনো জেলার দল না, কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর দল না, রাজ্যের দল না। আমাদের দলটা সর্বভারতীয় দল। উনি এআইসিসির মেম্বার, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট। ওনার সিদ্ধান্তটা দলের উপরতলা নেবে। আমাদের এই ব্যাপারটা আমাদের এখানকার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। হ্যাঁ, আমার বিধায়ক ছিলাম। এবারে আমার শারীরিক যে অবস্থা, আমার বয়স, আমি এখন ৭৭, আমার অফিসিয়াল হচ্ছে ৭৫, কিন্তু আমি প্রকৃত বয়স আমার ৭৭। তাহলে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বাড়ি থেকে এবং আমার আত্মীয় স্বজন সবারই নিষেধ আছে যে নতুন করে দাঁড়াতে হবে না তোমাকে এই শরীরে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার লোকে চায় সেবাটা, কেমন যে কনস্ট্যান্ট থাকবে, আমি আমি থাকতে পারছি না। তাহলে আপনি কি মনে করেন আমার দাঁড়ানো উচিত? আপনি কি দলকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, আপনি কি মনে করেন দাঁড়ানো উচিত? কারণ আমি এখন প্রদেশে একদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমি শিডিউল কাস্ট ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান,
আমি রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান, কাজে সেখানে আমার অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে। আমাকে অনেক কাজ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বহীন অনেক কাজ করতে হয়, সে কাজগুলো আমার চলবে। আর এখানে আপনারা তো জানেন আমার দলটা হচ্ছে একটা অল ইন্ডিয়া দল এবং এখানে এআইসিসি সব কিছু করেন। এআইসিসি আমার ব্যক্তিগত মত অবশ্যই আছে এই, কিন্তু আলটিমেটলি আমি যখন দলের কর্মী তখন কি হবে এবং আগামী দিনে কোথায় জোট ইত্যাদির ব্যাপারে কোথায় যাব না যাব আমরা এখনই আমার শারীরিক দিক থেকে আমি যেটা বলছি যে আমার দাঁড়ানো উচিত নয়, যেহেতু আমি কনস্ট্যান্ট সেবা দিতে কন্টিনিউয়াস সেবা দিতে পারছি না। এই হচ্ছে ফিরে জেলা কংগ্রেসকে কি জানিয়েছি? पिंजरे में फंसा तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस। नगरकाटा के भगतपुर चाय बागान में बृहस्पतिवार देर रात वन विभाग के पिंजरे में एक तेंदुआ जा फंसा। वन विभाग सूत्रों के अनुसार तेंदुए को पकड़ने के लिए यहां एक पिंजरा लगाया गया था। बताया जाता है कि तेंदुआ आसपास के इलाके में काफी उपद्रव मचा रहा था। तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे और उन्होंने वन विभाग को इसकी शिकायत की थी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए चाय बागान इलाके में पिंजरा लगाया था, जिसमें कल देर रात तेंदुआ जा फंसा। इधर तेंदुए के पिंजरे में फंसने की खबर मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। रेंजर राजकुमार लायक ने बताया कि तेंदुए को गोरुमारा प्राकृतिक पर्यवेक्षण केंद्र में ले जाया जाएगा। वहां उसका प्राथमिक इलाज करने के बाद दोबारा उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इधर तेंदुए के पकड़े जाने से चाय बागान व आसपास के इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।